Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Matters. We're going to be discussing legal issues, immigration, litigation, and representation. Agar aapke paas koi question in relation to anything with legal, then please contact us. We'll be more than happy to advise you. Aur aapko jo hum information today is mainly generic information. Myself, my colleague will be sharing a platform to discuss some of these issues. Aapke saath yehi discuss karenge jo aapke koi masala hai, uska hum hal behtar dhoondenge. So I want to welcome my colleague Khalid Mahmood. Thank you very much, Imran bhai. बहुत शुक्रिया. Khalid sahab, obviously we're going to be discussing generic information. I think viewers ko batate chalte hain that all our discussions based on generic information. Agar aapke paas koi issue hai, you need to contact your solicitor or your legal representative. And if you want, agar aap chahte hain humse baat karna, to aap hame contact kar sakte hain through the telephone numbers on the screen or through the email jo address TV pe aata hai. Agar koi private baat ho to hum aapse phir ye kehenge to please aap control room se number lein. We'll be more than happy to talk to you. Magar full hum aapko koshish kar de to aapko a generic information de. Khalid sahab, let's just begin by pehle to ye kehte there are some new news has come in jo kuch news abhi jo views ko batate chalte hain, and I want to bring on particularly jo ye fast track asylum ka جو کورٹ نے ابھی ڈکلیئرڈ ایز انلافل. اسے تھوڑا سا ایکسپلین کرے جو یہ جو بات ہے فاسٹ ٹریک اسائلم وچ از بین ڈکلیئرڈ انلافل. جی وہ اسائلم کے دو سسٹم ہیں. ایک تو نارمل پروسیجر ہے جس میں یہ ہے کہ آپ اسائلم کرتے ہیں, آپ کا اسکریننگ انٹرویو ہوتا ہے, اس کے بعد وہ جو مین انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو ڈیسیژن دیتے ہیں اور پھر آپ اپیل کرتے ہیں. وہ ٹیکس تقریباً 6 ماہ لگ جاتے ہیں اس طرح سے. دوسرا جو سسٹم ہے اس کو وہ کہتے ہیں فاسٹ ٹریک سسٹم. فاسٹ ٹریک میں یہ ہے کہ جب آپ اسائلم کرنے جاتے ہیں تو اکثر وہ آپ کو وہاں پہ ڈیٹین کر لیتے ہیں اینڈ ود ان فیو ڈیز وہ آپ کو ڈیسیژن دے دیتے ہیں. پھر ود ان فیو ڈیز آپ کو اپیل لانچ کرنی ہوتی ہے اور ود ان فیو ڈیز آپ کا جو ہوتا ہے وہ اپیل سنی جاتی ہے. اور اس کے بعد فرسٹ ایئر ٹرائیبیونل, اپر ٹرائیبیونل جو ایرر آف لا ہوتا ہے تو وہ ود ان فیو ویکس 6 ویکس میں سارا کچھ وہ آپ کا جو ہے نا وہ اڑا دیتے ہیں. اور اس میں جو آپ کی جب آپ کی اسائلم پینڈنگ ہوتی ہے یا اپیل پینڈنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پھر وہ ڈیٹین رکھتے ہیں while your application being considered. اگر آپ اپیل بھی ہے تو ابھی ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ سارا اپیل سسٹم ہے اس انلافل. اس کی وجہ یہ تھی کہ ود ان 7 days جب آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے تو ود ان 7 days اپیل ہیئرنگ آ جاتی ہے کورٹ میں. تو اس میں یہ ہے کہ سلیسٹرز کو انسٹرکشن بھی لینی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وٹنس اسٹیٹمنٹ بھی بنانا ہوتی ہے. اس میں پھر اگر کوئی ایکسپرٹ ایویڈنس ہے تو وہ بھی آپ کو لانا پڑتا ہے. اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی ود ان 7 days. تو یہ 7 days ہے, کورٹ نے کہا کہ اس ٹوٹلی ان ریزنیبل کہ ود ان 7 days یہ چیزیں جو نہیں ہو سکتی. بیسکلی انہوں نے کہا they shouldn't expect somebody to be kept like this, detained, and this is unlawful. جی the whole system جو فاسٹ ٹریک کا اپیل سسٹم ہے وہ بالکل unlawful, اس کو انہوں نے جو ہے نا unlawful کہہ دیا. بلکہ unlawful نہیں کہا, ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ultra vires ہے. ایکسپلین نا یہ ultra vires. یہ ultra vires یہ ہے کہ جب منسٹرز جو ہے نا beyond their powers یوز کریں ایکسیس اس کو کرتے ہیں تو اس کو پھر وہ الٹرا وائرس کہتے ہیں. if it's outside that. جی ٹھیک ہے, too much excessive جیسے آپ نے. جی یہ پہلے بھی 2014 میں بھی تقریباً 2 دفعہ پہلے بھی اس سسٹم کو جو ہے انہوں نے چیلنج کیا تھا. ایک چیریٹی ہے تو اس وقت بھی جو کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اگر کسی کی اپیل پینڈنگ ہے تو آپ اس کو جو ہے نا ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں رکھ سکتے. لیکن اس کے خلاف بھی وہ جو سسٹم ابھی تک چل رہا ہے وہ سیم چیزیں کر رہی ہیں. لیکن گڈ نیوز تو یہ جو تھی گڈ نیوز تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہوم آفس ہے اس نے کہا جی کہ یہ اس سے بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے کہ ایسا ہو جائے گا تو لہٰذا ہمیں اسٹے دیا جائے. تو اسی جج نے اس کو پھر اسٹے دے دیا تاکہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے تو اس کے خلاف اپیل کر لیں. دیٹ از اے بٹ آف بیڈ نیوز. چلیں ہم کال لیتے ہیں, ابھی ڈسکشن جاری رہے گا. ہیلو, ویلکم ٹو لیگل میٹرز. کون کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں مسز حسین بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ اپنا کوشچن بتائیں گی مسز حسین؟ میں یہ پتہ کرنا چاہتی ہوں, میں نے بچے کے بہاف پہ کیس ڈالا تھا تو وہ ریفیوز ہو گیا تھا, مجھے پھر اپیل کا چانس ملا تھا. ٹھیک ہے, 7 ایئر پالیسی پہ تھا. جی اب میرا زمرانو کیس کا نام. اچھا زمرانو, ٹھیک ہے زمرانو.
वो डाला था तो मुझे फिर रिफ्यूज हो गया था, अपील का राइट मिला था, तो फिर हम कोर्ट में गए थे, तो फिर जज ने मेरे हक में फैसला कर दिया है। ठीक। तो इसके बाद होम ऑफिस वाली वो दूसरी पार्टी है, तो जी। वो अपील में चली गई है। तो अब ठीक है। हमें हाई कोर्ट के लिए डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे कितने चांसेस हैं, बच्चे के बिहाफ पे था तो नहीं, उसके बाद उन्होंने एरर ऑफ लॉ उन्होंने अपील की अपील करी है हाई कोर्ट। Error of law पे। मेरे फैसले के खिलाफ होम ऑफिस वालों ने अपील की। नहीं तो उनको परमिशन टू अपील मिल गई उनको है। परमिशन मिले। मिल गई है, हम अब सिर्फ हाई कोर्ट के डेट की इंतजार कर रहे हैं। अपर ट्राइब्यूनल होगा, हाई कोर्ट नहीं होगा। इट्स अ ट्राइब्यूनल। जी। ठीक है, ठीक चलिए है, ओके, आपको बता दें, आपका शुक्रिया मिसेस हुसैन, थैंक यू फॉर कॉल। Khalid, let's just, before we discuss some of these, you call it, to Mrs. Senki, and before that, let's just talk about this. You do asylum, obviously it's a very important area, जो आपने भी बताया. This was a lot of pressure been put on. अभी आप न्यूज़ पे भी देख रहे हैं, detention centers में लोगों को detain करा गया है, and there's a lot of pressure groups. आप ये describe उसमें ये है कि 2-3 साल से भी लोग हैं जो डिटेंशन सेंटर में हैं, और उसमें कई दफ़ा इसको चैलेंज किया गया कोर्ट्स में, और कोर्ट्स को कहा गया जी कि आप एक सेट टाइम बताएं कि मैक्सिमम डिटेंशन जो है ना कितनी देर तक होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट जो है ना इसको हमेशा उसने इस इशू को अब्यूज नहीं किया, उन्होंने इस इशू को एड्रेस नहीं किया, उसने कहा कि देयर इज नो मैक्सिमम। चलिए मैं अभी डिस्कस करते हैं, कॉल आ रही है, शामिल करते हैं। हेलो, वेलकम टू लीगल मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? सर मैं नदीम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। आई नीड सम एडवाइस प्लीज। ठीक है, वेलकम, यू आर ऑन लाइव ऑन द प्रोग्राम एंड कैन यू गिव अस योर क्वेश्चन? नदीम, आप अपना सवाल बताएं। जी, सवाल ये है कि मैं टियर 1 वीजे पे हूँ और मैंने नेक्स्ट मंथ 10 ईयर वाले रूट पे जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये पूछना चाहता था कि जब 10 ईयर पे जाऊंगा, 10 ईयर इंडेफिनिट लॉन्ग रेजिडेंसी पे, तो वो टियर 1 का जो टैक्स मैटर पूछ सकते हैं या लॉन्ग रेजिडेंसी टोटली डिफरेंट है वो? ठीक है, वो जो टैक्स का आप कह रहे हैं। जी, मैंने 1 पे हूँ एट द मोमेंट, बट मेरे नेक्स्ट मंथ जो है ना मेरे 10 साल पूरे हो जाएंगे लॉन्ग रेजिडेंसी। चलो ठीक है, बताते हैं। We got it. ठीक है नदीम भाई, आपका क्वेश्चन आ गया, थैंक यू फॉर योर कॉल, शुक्रिया आपका, वेलकम। Let's just talk about जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यही some of these pressure groups जिन्होंने प्रेशर डाला, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर डाला गया, आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे टू द व्यूअर्स, ये बताएं। जी, मैं यही कह रहा था कि वो कई दफ़ा पहले भी चैलेंज किया गया, और इसको कोर्ट ने पहले भी जो डिटेंशन थी उसको अनलॉफुल कहा था। उसमें कहा था कि अगर देयर इज़ नो रिस्क ऑफ अब्सकॉन्डिंग तो जो एप्लीकेंट है उनको कोर्ट में उनको डिटेंशन में नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो उनका प्रोसीजर था अभी तक उसी तरह चल रहा था, उसी तरह लोगों को वो डिटेंशन सेंटर में रख रहे थे। ठीक है, कॉल आ रही है, शामिल करते हैं। वेलकम टू लीगल मैटर्स। हेलो, कौन कहाँ से? हेलो, वेलकम टू लीगल मैटर्स, कौन कहाँ से? जी मुझे बात करनी है, आप रिकॉर्ड प्लीज आंसर कर सकते हैं? जी, आप लाइव ऑन प्रोग्राम पे इस वक्त, आप अपना क्वेश्चन बताएंगे और अपना नाम बताएंगे प्लीज। जी, मेरा नाम आसमा, मैं इस्लाम से बात कर रही हूँ। जी, मैं यहाँ पर 2011 में स्टूडेंट आई थी। ठीक है। और मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं, और एक बच्चे की एज अभी जो है वो तकरीबन 9 ईयर हो रही है, और बेटी की एज जो है वो तकरीबन 12 ईयर हो रही है, और दोनों बच्चे फुल टाइम स्कूल गोइंग हैं। और मैंने यहाँ पर अभी जो मेरी एप्लीकेशन है वो FLR की है। अच्छा। तो मुझे पूछना है कि फर्दर मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों के साथ, मेरा कैसे कुछ हो सकता है? ओके, आप ये बता सकती हैं, आप जब आई थी 2011 स्टूडेंट पे आई थी ना, स्टूडेंट वीजा? मैं स्टूडेंट वीजा। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो आपने FLRFP की है वो किस बेसिस पे की है? जी, बच्चों की। लेकिन बच्चों तो 7 ईयर पॉलिसी में नहीं आ रहे ना, वो तो 9-12 साल के, बॉर्न इन पाकिस्तान। आप 2011 में आई थी इधर। जी, तो 7 ईयर पॉलिसी में तो आप नहीं आ रही, तो आप और किस कैटेगरी में की है आपने? FLRFP कई उसकी कई ग्राउंड हो सकती है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे जो उसने बताया गया था वो यही बताया था कि फैमिली प्राइवेट लाइफ को जो है ना इस बेस पे की जा रही है। ठीक है, लेकिन आप प्राइवेट लाइफ में नहीं आ रही है ना, कैटेगरी में किसी पे भी नहीं आ रही। आप आ रही, लिसन, आपको हम बताते हैं, हम आपको बताएंगे आपकी प्राइवेट लाइफ की बारे में जो आपने मेंशन किया। ठीक है, प्राइवेट लाइफ बताते हैं। We'll come back to you. Thank you for your call. शुक्रिया आपका। एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं। हेलो, वेलकम टू लीगल मैटर्स। हेलो, हाय। हाय जी,
I just want to ask one of my sisters, she wants to get married. She is a नाम British, my पूछे। sister. जी आप अपना नाम बताएंगे? Can you give me your name please? It's Anisa. Anisa. Okay, Anisa, welcome to the program. You're live on air. Thank you. So you're asking about your sister who wants to get married, yeah? Yeah, she is British, and the boy, he is not British, and he is just going for signing. Okay. He had like, you know, check in some immigration people, and then he has to file the case, and he is every month he is going for signing. Okay. So what can I do? She can get married. How she can get married? Why is he saying? Is he so he hasn't got any status in the UK? No, nothing. Just he came and he stayed here for 6-month visa. He came and he stayed here for long. Was he a visitor? 6 years. Was he a visitor? Yeah, it was a visitor before, but he didn't say anything. He Okay. just said like he Okay. don't have. So how long passport, has he so been when overstayed? कितनी Sorry? देर से overstayed है? Yeah. How long? 7 years he is there. 7 years. For last 7 years he's okay. Obviously. ठीक है, and your sister is British, she wants to get married. आपको बता दें, thank you Anisa for your call, शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया. Khalid, before we go into our discussion on the questions, let's just carry on. Asylum is a very important topic. Government is streamlining career, obviously. Humanitarian grounds there, they're looking into that as well, so that people don't abuse that. But obviously this one, this fast track you're declared unlawful, that's some good news in that. It is some good news, लेकिन उसके साथ साथ वो bad news भी ये है कि उसी जज ने जो है ना उसके खिलाफ स्टे दे दिया है कि जी आप ठीक है, आप इसके साथ जो है ना वो आप अपील कर लें और साफ ज़ाहिर कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ अपील करेगी और ये मैटर जो है ना साफ ज़ाहिर कोर्ट ऑफ अपील में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसके बाद. And so So obviously it could take long time. it can take some time before we know the जैसे कि outcome. M&M का केस जो 18,600 का हुआ था Yeah. वो हाई कोर्ट ने उसको In the end उन्होंने upheld करा. जी जी 18,600 was upheld. जी. सो अभी वो कोर्ट ठीक ऑफ है. अपील में जा रहा है, अभी वो सॉरी सुप्रीम कोर्ट में Supreme Court, yeah. उसकी लिस्टिंग जो है ना आ गई है, तो होपफुली वो जो है ना विद इन फ्यू मंथ्स. ठीक, खालिद साहब आपसे डिस्कशन करेंगे. कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो, वेलकम टू द प्रोग्राम. कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? जी मैं कामरान बोल रहा हूँ लंदन से. जी कामरान साहब, आप अपना सवाल बताएंगे. आप लाइव ऑन एयर हैं प्रोग्राम पे. जी हाँ, 2 क्वेश्चन मेरे हैं, काइंडली जरा बताइएगा. कि एक तो ये है कि इधर मैंने साइन किया हुआ है 2011 से. ठीक है. और अब मेरी जो सी ना नेक्स्ट जो है ना अपील है इधर हाई कोर्ट में. ठीक है. ठीक है, अब उसकी ओरल हियरिंग है मेरी, तो काइंडली ये बताइएगा ओरल हियरिंग की जो डेट्स हैं कितनी देर बाद आती हैं, ये बताइएगा. और सेकंड ये है कि उसके बाद मैंने अगर करना हो यूरोपियन यूनियन में तो उसका तरीकाकार क्या होता है, मतलब और उसको कितनी देर लगती है यूरोपियन यूनियन में केस अगर हम डालते हैं. जी जी, दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं है. आप दोनों आप कह रहे हैं जी कि ओरल हियरिंग है, क्या आपने जेआर किया हुआ है? नहीं, असाइलम किया हुआ है, तो उसकी परमिशन लेनी है कोर्ट से. अपर ट्राइब्यूनल. अपर ट्राइब्यूनल के ना हाई कोर्ट नहीं हो सकती. कि आपको रिफ्यूजल ही आना है तो ओरल हियरिंग में वो बुला लेते हैं. जी जी कामरान साहब. अच्छा, वो रिफ्यूज हुआ है तो आपने ओरल किया है अपर ट्राइब्यूनल में. जी हाँ. अच्छा चलो, अभी ठीक हो गया. ठीक है. और दूसरा आप यूरोपियन वाला वो जरा एक्सप्लेन करें. हाँ, और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता ये और हियरिंग अगर रिफ्यूजल भी हो जाती है तो उसके बाद अगर करते हैं यूरोपियन यूनियन में, मतलब फ्रेश क्लेम नहीं करते, यूरोपियन यूनियन में डाल देते हैं, तो उसके कितना टाइम लगता है और चांसेस क्या होते हैं सर उसके ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर? ऑन द ह्यूमन राइट्स. ठीक है. ठीक है, हम समझ गए. शुक्रिया आपका कॉल का. थैंक यू सो मच. की वॉच प्रोग्राम आपको जवाब देते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. कॉल आ रही शामिल करते हैं. वेलकम टू लीगल मैटर्स. वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? तो महमूद नाम है मेरा. आप लाइव ऑन प्रोग्राम है. आपकी इस वक्त लाइन साफ नहीं आ रही है. आप जरा क्लियर बात करें. अपना नाम बताएं प्लीज. मैं बोल रहा हूँ महमूद. मैंने ये कहा था कि मुझे मौका मिलेगा बात करने का. बिल्कुल आपको मौका मिल रहा है. आप इस वक्त प्रोग्राम पे ही. आप अपना सवाल बताएं महमूद साहब. Am I on air? जी. You are on air. You're live on program. What I wanted to ask you was, as
non-EEA national. I'm living in EEA country. Yeah. Due to my children's EEA national. Okay. And if I want to move to UK, and can I? And they have allowed me a tier 2 visa Tier 2 visa. for a work. Yeah, tier 2. Okay. Okay. Now, do I have to pay them for the visa as well as for the medical Surcharge. 200? Yeah, that's about. Medical surcharge. For tier 2 visa, yeah? Yeah, surcharge. Yeah. ठीक है. Okay, ठीक, okay, हम बताओ. आपको बता दें. That's your question. Thank you, Mahmood Saab. We'll explain to you. Keep watching the program. So, Khalid, also, one other thing हम व्यूज़र को ये बताते चलते हैं. माशाल्लाह से, obviously, you being a solicitor of England, आप Ireland का भी cover करते हैं. You're registered down there. I think it's a very good news to help the people. अगर कोई व्यूअर्स इस वक्त सुन रहा है हमारी बात, तो हमसे कांटेक्ट करें. In many ways we can help him. जी, of course. This helps in the spouse visas as well. ये थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, ज़रा सा लोगों को information भी दे रहा हूँ, that we can help him without. अगर किसी को इस वक्त discussion होगा शादी के वीज़े पे, spouse visa, then they need to contact us because we can help him. जी, क्योंकि UK में अभी इन्होंने बहुत सारी जो है ना वो इसको बहुत मुश्किल कर दिया. उसमें ये है कि पहली तो ये है कि 18,600 है जी बेसिक के जी आपकी सैलरी होनी चाहिए. सही बात. उसके साथ साथ अगर आप ओवरस्टेयर हो गए हैं मोर देन 28 डेज तो फिर उस बेसिस पे कर देते हैं. आजकल इन्होंने इसको बहुत ही मुश्किल किया हुआ है. साहब आपसे डिस्कशन चलेगी. कॉल आ रही से शामिल करता हूँ. हेलो, वेलकम टू लीगल मैटर्स. हेलो भाईजान. जी वेलकम सिस्टर. आप अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम नूर है भाईजान. मैंने आपसे ये पूछा, मैं शादी करी थी लीगल से 2011 सितंबर में. ओके 2011. हमारी अपील हुई सी कि अप्रैल में, तो वो रिफ्यूज हो गई. तो जज बोलता मेरे हस्बैंड से थोड़ी गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में, कुछ बहुत ज़्यादा उन्होंने उसमें प्रेशर डाला. ठीक है. मेरे को तो कुछ नहीं पूछा था. मैं ब्रिटिश हूँ. तो उन्होंने मेरे उसमें से थोड़ी गड़बड़ होगी. तो मेरा बैरिस्टर बोलता है कि अभी हमारे केस बहुत वीक है. तो सिस्टर बोला कि हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए. तो लीव एवरीथिंग लीव इट एज इट इज एंड देन वी वेट 6 months एंड देन वो फ्रेश एप्लीकेशन डालेंगे. तो इसका क्या हाल हो सकता है? ऐसा ही करना चाहिए वो चाहिए में जाना चाहिए सन क्या करना चाहिए? हमारी शादी 2011 सितंबर में हुई है. Okay, and basically you just want to. कोई जवाब नहीं मिला. ये सीन वेट करते हैं. अभी आज कुछ खुशखबरी मिलेगी वो कुछ नहीं मिला. Yeah, okay, sister Noor, हम आपको करना चाहिए हमको बताते हैं. ठीक है, एडवाइस लेना. ठीक है, आपको बता दें कि क्वेश्चन प्रोग्राम. शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कॉल. वी गॉट योर क्वेश्चन. एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं. हेलो, वेलकम टू लीगल मैटर्स. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन कहाँ से? मैं बर्मिंघम से अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ. जी अब्दुल गफ्फार साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम. आप अच्छा मैं 2006 में वर्क परमिट पे आया था इधर 1 साल का. वर्क परमिट पे, ठीक है. तो फिर वो खत्म हो गया था. तो फिर 2012 में मैंने शादी की तो ब्रिटिश सिटीजन से. जी. तो उसके बाद फिर मेरी उसमें से एक बच्ची है. तो फिर मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में केस दिया था बच्ची की बेस पे. ठीक है. तो सारा कुछ हो गया. फिर उन्होंने डीएनए टेस्ट मांगा था. तो डीएनए टेस्ट में वो जिस डेट पे मांगा था मैंने तो भेज दिया. पर वो जो डीएनए टेस्ट वाली कंपनी थी उन्होंने कोई 1-2 दिन लेट कर दिया. फिर उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया. ठीक है. तो फिर उसके बाद 4 दिन बाद फिर उन्होंने खुद ही लेटर लिखा कि हमें आपका डीएनए टेस्ट मिल गया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. तो आप रिव्यू करो या फिर नई एप्लीकेशन दें. तो फिर हमने रिव्यू किया. कोई 4 महीने 5 महीने हो गए, तभी तक कोई जवाब नहीं आया उसका. ठीक है. ओके, ऑन द रिव्यू. ओके, नई एप्लीकेशन डालने के बाद ये गफूर साहब. जी ठीक है. एप्लीकेशन का डाली थी या आपने रिक्वेस्ट की थी रिव्यू की? हमने रिव्यू की थी, रिक्वेस्ट की. उन्होंने एक्नॉलेज किया था जी. उन्होंने एक्नॉलेज किया था. उन्होंने कहा था जी कि हाँ हम करेंगे. नहीं, उन्होंने अभी उसके बाद कोई 5 माह से उन्होंने जवाब ही नहीं दिया. अभी. चलो ठीक है, बताते हैं. गफूर साहब थैंक यू. आप का कॉल का हमारे क्वेश्चन आ गया, आपको जवाब देंगे. खालिद साहब
اب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. We're going to come back to views سے یہ کہیں گے. Keep calling, keep if you have an issue, immigration, litigation, کوئی سا بھی ہے, we're more than happy to discuss and give you advice. ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں پھر آپ کے جو questions ہیں ان کے جواب دے دیں. So keep tuned in, keep watching.